table. Here we have Honorable Sri Hassan Dorji Sonaji, who is the Honorable Speaker of Arunachal Legislative Assembly, Arunachal Pradesh. In our list, we have Honorable MLA. People used to call local MLA, but MLA is the MLA, he's our MLA, he's our guardian, Sri Tana Ali Tarasa. We have former ambassador, very respected Sri Sadhbir Singh Sahab. We have very energetic registrar of our university, the known historian, Dr. L.P. Vikram Sahab. The coordinator of mover and shaker and coordinator of this program, none other than Dr. Kisang Devi Madam. Of the dais, we have honorable deans here. I can see in life sciences, Dean Professor Sompot Thenjung Sahab, former dean and currently head of the Department of Hindi, Professor Oken is here. Then we have Dean Professor Sanjeev Kumar, Dean of Basic Sciences, Dean of Hindi Languages is here, Professor Singh, Dean of ICT is there, Professor Kabi. We have former Dean Professor Kalita here, now he is head of the Department of Physics. We have Jitin Sakia Sahab, head of the Department of Mathematics. We have Dr. Arvind, head of the Department of NSS. We have Sankar Thapa, head of the Department of Management. We have Bhagat Nayak Sahab, head of the Department of English. We have Singh Sahab, head of the Department of Stat. We have Sage Sirin Sahab. We have Arvind here. We have Sunil Kwezam somewhere here. Then on other side we have Professor Himanshu. We have joint registrar Dr. David Kartim, the poster boy of RGU. Then we have Professor Rita Sahab. We have joint registrar Thomas Sahab. We have Professor Vandana Upadhyay. We have Professor Kesan Jayji Madam. Madam Jumiri is hiding somewhere. Professor Topi Professor is here. I should not forget the name of my people. Professor Satish is here. Why I brought out the name? I think PM is here. Then Narendra is here. Who else is hiding? Then the Manju Brahman is here. And then even Moir is here. You see, it is a lovely morning. Then I think Pegu is here. Okay, Pegu is here. The head of the Department of Mass-Comm. And next to him, Radoria. See, what is the beauty in bringing the name? It is important for me to put it on record also. That when you wish to do something good, then you invite people throughout the universe kind of thing. And my university is my university. So it is better for me to remember the name of each and everyone who is giving his or her energy in the system. So that is why I greeted them personally. My greetings to the other guests who are here from other part of the country, and then officers also. Then we have entrepreneurs whom we have just honored. Then the entourage came with Honorable Speaker and Honorable Anahali Sahab. मेरे युवा दोस्त PM साहब बोलते हैं ना मित्रों, तो मेरे युवा दोस्त media friends, all of you, once again my warm greetings to you. Namaskar, Vandan, Abhinandan. See why we are here, why we are trying. I'm eager to listen to Honorable Speaker Sir. He is the chairman of Arunachal, this state for G20 issue. And Honorable Ambassador has just spoken. I mean, he has given you insight also. And in this theme speech, Madam Kesan also gave you. Dr. Vikram also told you that why G20 word is given. You know, it's a group of people, 19 country and European Union. Union means there are some people over there also. So ये हम करना क्या चाहते हैं? What is real intention of all these meetings, all these things? You see, 1947, how many years we have spent? We are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. That means 75th year of Azadi. And we are going to celebrate this Azadi Ka Amrit Mahotsav for 25 years. When we reach to the, 100 years. That means, so what is the focus and why there are some
figure attached. During Azadi Ka Amrit Mahotsav, we have to recognize the 75 people in every state or districts, and then we have to organize 75 programs. Why these figures are running in our mind? You see, in last 75 years, how we are branded in the universe, in this world. हम डेवलपिंग कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से थोड़ा सा बेहतर होंगे, लेकिन डेवलपिंग कंट्री विथ ऑल द गुड थिंग्स यू आर सीइंग. अभी ऑनरेबल एमएलए साहब ने वो वर्ड यूज़ किया, हम तो यूज़ नहीं कर सकते. तो हम सभी पेड़ पे ही रहते थे. अभी हम जमीन में रहना शुरू कर दिए, घर बना लिए, अच्छी रोड बना लिए. लेकिन हमें और उन देश के लोगों में डिफरेंस कहाँ है जिनको हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं? मैंने तो सारी दुनिया के बहुत सारी कंट्री देखी, एम्बेसडर साहब ने भी बहुत सारी कंट्री देखी होंगी, हमारे ऑनरेबल स्पीकर एमएलए साहब भी गए हैं, आप सब भी बहुत सारी कंट्री में घूम चुके हैं. तो बहुत सारी कंट्री अपने आप को डेवलप किस मामले में डेवलप है, वो क्या है? द होल थिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड 3-4 मेजर एस्पेक्ट. सी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. कम से कम लोगों भूखे पेट लोग सोते नहीं हैं, बिस्तर पे नहीं जाते हैं. पीपल यूज्ड टू हैव 3 स्क्वायर मील. आप अगर दूसरे कंट्रीज की बात देखें तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो भूखे पेट बिस्तर पे जाते हैं. हमारे देश में आज भी कंडीशन ये है कि अगर देखेंगे तो 20-25% पीपल एक मील मिलता होगा, वो भी बचा हुआ मील. पीएम की जो इतनी सारी प्रोग्राम चल रहा है, 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है, ये जो हम सब्सिडी देते हैं. कभी कभी हमसे किसी ने पूछा, किसी विदेशी साइंटिस्ट ने हमसे पूछा, मेरे कलीग ने पूछा, अमेरिका से पूछा कि आखिर कब तक हम ये 80% लोगों को खाना देते रहेंगे फ्री का? हमने कहा हम फ्री का खाना नहीं दे रहे हैं, हम उनको मजबूत बना रहे हैं. जिस दिन वो अपना खाना कमाने लायक मजबूत हो जाएंगे तो वो फिर हमको उसकी आवश्यकता नहीं होगी. तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां अभी हमें बहुत सारी चीजों को इस नज़र से देखना है. हमने कहा ना, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर. ये जो कभी कभी लोगों के मन में आता है कि हम, आपको ये सोचना होगा कि हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ भाई बंधु एक बार खाना खाते हैं और हम कुछ रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं कि हम उसको खर्च नहीं कर सकते. तो ये सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया का, हम भारतीय हैं. जब हमारे पीएम साहब ये बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन होने की बात नहीं है, हमारे उस वैभव या उस सोच की बात है जहां हम सारे लोगों को खुश देखना चाहते हैं. यही कुटुंबकम की जो बात करेंगे, एक कुटुंब की बात करते हैं, यानी कि वी आर 1 फैमिली, दिस इज 1 अर्थ. एक बार हमने इस धरती का नुकसान कर दिया. महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने यह कहा था कि इस धरती के पास इतना है कि वो सबकी जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन इस धरती के पास इतना नहीं है कि एक आदमी का भी लालच पूरा कर दे. Once we becomes greedy, अगर हम लालची बन जाए तो ये सारी दुनिया हमारी हो जाए, ये सारा यूनिवर्स हमारा हो जाए, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे. भारतीय परंपरा इससे दूर करती है. आपने देखा होगा, कभी कभी लोग सवाल करते हैं और हम उसका जवाब नहीं देते, हंस के टाल देते हैं. कोविड में दूसरे दुनिया के लोग, हमारे दूसरे देशों के लोग जहाँ पे निगेटिव ग्रोथ हो रही थी, भारतवर्ष में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. लेकिन क्या नैरेटिव सेट किया गया कि साहब हम डोज बाहर वालों को क्यों दे रहे हैं? बाहर वालों को डोज, यही भारतीय परंपरा है. हम अपने लोगों की भी केयर करते हैं और हम अपने पड़ोसियों की भी केयर करते हैं. उनको हम जरूर देते हैं जिनको हमारी जरूरत है. तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को सीखना होगा. G20 में जो कॉन्सेप्ट है 2017 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो बच्चों को ये पढ़ने चाहिए कि हमको किन किन गोल्स के काम करने. ये हमारे बच्चे कॉलेजेस से भी आए हैं, हमारे अपने भी बच्चे हैं. आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे सीखने होंगे कि आखिर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा. हर चीज को हम कागज पे लिख के नहीं देते. वी डोंट गिव यू एवरीथिंग इन राइटिंग ऑन पेपर. हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास सोचने समझने की शक्ति आ गई है. जैसे अभी मैं एक मजेदार बात बताऊं, मैं बैठा था तो मैं तो ऑब्जर्व बहुत करने की कोशिश करता हूं. तो प्रोफेसर परिदा ने इशारा किया इलेक्ट्रिशियन को कि इधर की लाइट ऑफ कर दो, अंधेरा. किया था ना आपने? ठीक है. लेकिन मुझे ये ताज्जुब हुआ कि इलेक्ट्रिशियन ये नहीं समझ पाया कि अभी मेरे सामने सिर्फ ये पोस्टर है, उधर की लाइट भी जल सकती थी. उसको नौकरी दी गई है, उसको सोचना चाहिए था. हमने लाइट कम क्यों की थी? क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन चल रही थी, तो फेड हो जाएगा. ये एग्जाम्पल आपको दिया मैंने छोटे में. क्यों? यही आपको प्रेरित करता है कि हर छोटी ऑब्जर्वेशन को, हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने क्या कहा था, ऑब्जर्व करना है आपको. जो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है और उसको रिकंसाइल कर सकता है, उन ऑब्जर्वेशन को अपने काम में जोड़ सकता है, तो वो अपनी ग्रोथ को आगे ले जाता है. वो अपनी पॉजिटिव ग्रोथ को, ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, डेवलपमेंट से पॉजिटिव होता है.
तो हम लोगों को अपने जीवन में इन सब चीज़ों को सीखना होगा। कहने की बात है कि प्रेसिडेंसी पहली बार मिली है, दैट इज वेरी गुड, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी है क्या? आखिर ये जो वर्ड आपके काम में हम रोज सुबह शाम डालते हैं, शहद जैसा, व्हाट इज दिस वर्ड मीन फॉर अस? एक सिंपल सरल तरीका है कि जिस जगह पे खुशी हो और लंबी खुशी हो, उसको हम सस्टेनेबिलिटी से डिफाइन कर सकते हैं। क्या है? पहली स्कूल ऑफ थॉट जो है, पहली डिफिनेशन सस्टेनेबिलिटी की ये है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिससे लेते हैं, हमको हमारे पूर्वजों ने, हमारे मम्मी पापा ने, हमारे दादा दादी ने एक अच्छी धरती दी थी। आपने देखा होगा ना कि यहाँ भी पानी खूब बरसता था, चिड़िया चहचहाती थी, है ना। अब तो सवेरे उठते थे हम, हो सकता है कि हम झोपड़ी में रहते हों, लेकिन सवेरे उठते थे तो उठने का मन करता था, हवा साफ होती थी। लेकिन हमने क्या किया? कंक्रीट की बिल्डिंग बनाना कोई गलत नहीं है, इसके बगैर रास्ता भी नहीं है मेरे पास, सड़क बनाना गलत नहीं है, रास्ता भी नहीं है, लेकिन एक बैलेंस तरीके से बनाना है। हमको ऐसा रास्ता बनाना है कि हमारी जीव जंतु की हत्या ना हो, हमारे पहाड़ उतने ना काटे जाए कि आपको रोज लैंडस्लाइड हो। तो ये इनकॉर्पोरेट करना है, ये जो ग्रीन कॉन्सेप्ट है, ये जो ये वातावरण को प्रदूषित ना, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उससे एक ऊर्जा निकलती है जो वेस्ट के रूप में जानी जाती है। किसी भी इस देश में या इस धरती पर रहने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो ये प्रयास करे कि उसके द्वारा उत्सर्जित, यानी कि जो वेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, वो कम से कम हो। हमारे पीएम साहब ने क्या कहा? सोलर की बात अभी करी, तो दिक्कत कहाँ है? हमने इस कंपाउंड में 147 सोलर सेल लगा रखे हैं, जिसमें 20 काम नहीं करते हैं। मेरी अपने आप से शिकायत ये है कि आज तक हम उन इलेक्ट्रीशियन को ये बता नहीं पाए कि साहब 15 दिन या 1 महीने में उसका पैनल साफ कर दो तो लाइट आने लगेगी। ये अपने आप सीखना है। ये हम बच्चों को भी इसलिए बता रहे हैं कि जिम्मेदारी सीखनी होती है। तो सोलर लगा दिया, पैनल लगा दिया, पैसा खर्च कर दिया, तो साल भर में काम नहीं करेगा। तो ये खर्चे कहाँ से आते हैं? आपके टैक्सेस से आते हैं, देश की जो लोन मिल रहा है उससे आते हैं। तो करना ये होगा हम सभी को कि इन सारी चीजों को समझना होगा। सस्टेनेबिलिटी की दूसरी डिफिनेशन आती है कि एक तो हम वेस्ट ना करें, कम करें, और धरती को जैसा पाया है वैसा अपने आने वाले भविष्य को दें। एक तो ये हो गया। दूसरा सस्टेनेबिलिटी क्या हो गया? अगर किसी जगह आप 1 रुपया लगा के काम कर रहे हैं और आप उससे 2 रुपया पाए हैं, तो अगले साल हमको 2 रुपया लगा के 2 रुपया या 4 रुपया न कमाना पड़े। हम 2 रुपया ही लगाएं और हमको साल दर साल 1 रुपया लगाएं और साल दर साल 2 रुपया मिले, इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसी सिस्टम की कम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं? एक खेत में हम फर्टिलाइजर और काम करते थे, पैसा थोड़ा लगाते थे, दूसरे साल ज्यादा लगा रहे हैं। तो एक ये डिफिनीशन है। तीसरी डिफिनेशन बड़ी जरूरी है, जो बजट साहब ने बताने की कोशिश की या बताया उन्होंने। अभी हमारे ऑनरेबल स्पीकर सर हमको ज्यादा बताएंगे, हम उनको सुनने आए हैं। जिस जगह आप रहते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है आपको समझने की। जिस जगह आप रहते हो वहां की सारी जनसंख्या के पेट भरे होने चाहिए। चाणक्य ने क्या कहा था? चाणक्य ने ये कहा था, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, कि आपको अपने रक्षा पे बहुत खर्च करना चाहिए और आपके उस परिवार पे खर्च करना चाहिए जो आपको पैदा करके कर देता है और धन देता है। तो यानी कि हमको आप पे, यानी कि जनसंख्या पे पीएम साहब जो खर्च कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कि सबके पेट भरे होने चाहिए। अगर देश के लोग का पेट भरा है तो फिर आप देश के हित में अच्छी बात सोच सकेंगे। तो मुझे लगता है कि सब बातों के साथ हम सभी को सीरियसली G20 के फंक्शंस को, उसकी पिच को समझना पड़ेगा और आने वाले कल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी उम्र हो गई है। ये भविष्य आपका है और भविष्य संभालने के लिए मजबूत कंधों की आवश्यकता होती है, और वो कंधे मजबूत तभी बनेंगे जब एक अच्छी सोच आप लेके आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मन लगा के इस कार्यक्रम को सुनिए। जय अरुणाचल, जय भारत।